Good morning, students. My name is Manjot Singh, and I am working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College, Kadwa. Today, I am going to discuss about the number system of digital electronics. Today, we will discuss about binary number system, decimal number system, octal number system, and hexadecimal number system. And we also do some conversions. In the last video, we did analog signals and digital signals. We already know about the digital signals, their advantages and disadvantages. In the same way, we already know that analog signals, advantages of analog signals and digital signals. So we start with the today's topic of number system. Number system. There are four main types of number systems that work with computers and in our life. In our life, we normally use decimal number systems. Computer can understand binary, hexadecimal, and octal number system. So these are the numbers: decimal number system, binary, octal, and hexadecimal. The base of decimal is 10, binary have 2, octal have 8, and hexadecimal have 16. So by using the base, we identify the type of number system. That particular number is belongs to that number system. Such as अगर हमारे पास एक नंबर है 10, 10 मीन्स 10, वो कोई भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है. तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उनको हम उनके बेस से आइडेंटिफाई करते हैं. Next we have symbols. In decimal we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, these numbers. In case of binary, we have 0 and 1, only two numbers. Octal have 8 numbers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. In octal and decimal, there are two numbers difference. 8 and 9 is not present in case of octal. Now, next number is hexadecimal number. Hexadecimal number has some decimal numbers or all decimal numbers and some alphabets. Hexadecimal has all decimal numbers such as 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. After that it starts alphabets: A, B, C, D, E, F. These all are alphabets. So decimal number system is used by the humans and binary number is used for the
used by the computers. Octal and hexadecimal number systems are used for encoding and decoding purposes. Now, this is the representation of different types of numbers. In the first column, we have decimal number system or decimal numbers. Then we have binary numbers, then octal and hexadecimal. We can represent or change the one form of number into the another form, such as 0 is same in the all numbers and again the 1, but 2 is similar for decimal, octal and hexadecimal but different for the binary number. In the same way, 3 in decimal, octal and hexadecimal is same, but for binary it is represented as 1 1. In case of 4, decimal, octal, hexadecimal have same value, but binary have 100. 5, binary representation 101. Others have the same 5. 6, 110 for binary. 7, 111 for 7 in binary. Next we have 8. Now the octal numbers are only 0 to 7. So after 7 it changes. So decimal and hexadecimal have 8 similar rate, but representation in binary and octal is changed. Binary, in binary it represented as 100. In octal it is 10. For the case of 9, hexadecimal and decimal have both similar numbers, but binary is in binary it is represented as 1001. For octal, 11. Then we have 10. Here all the numbers are changed because decimal number is from 0 to 9. Hexadecimal has only 0 to 9 numbers, but after that it changes into alphabets. So decimal 10, we called it 10 in maths, but in binary it is represented as 1010. For octal it will be 1 to 12. For hexadecimal 10 is represented as A. Then we have 11 for the decimal. बाइनरी में इसको बोलते हैं 1011 1011 बाइनरी में लिखते हैं 11 को, और ऑक्टल के लिए लिखते हैं 13. हेक्साडेसिमल में हम इसको B के साथ डिनोट करते हैं. देन वी हैव 12 1100 फॉर बाइनरी, 14 फॉर ऑक्टल एंड C फॉर हेक्साडेसिमल. 13 के लिए हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं D, ऑक्टल में लिखते हैं 15 और बाइनरी में लिखते हैं 1101. देन वी हैव 14 फॉर डेसिमल. बाइनरी में हम इसको लिखते हैं 1110, और जो ऑक्टल में लिखते हैं वो 16. हेक्साडेसिमल में E के साथ डिनोट करते हैं. देन वी हैव 15 for decimal is written in binary as 4 times 1 1 1 and 1. 4 बार एक लिखा जाए तो बाइनरी में 15 लिखा जाता है. In case of octal it is represented as 1 7. For hexadecimal it is F.
और ये नंबर सिस्टम आगे चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक 15 के बाद चेंजेस आ रही हैं। जब 15 से हम 16 में जाएंगे तो डेसिमल नंबर में तो 16 हो जाएगा, बट अदर्स में चेंजेस आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास इफ यू सी हियर वी हैव 4 बिट्स, 4 नंबर्स। हियर वी हैव 17, 18 नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअल में 8 नहीं है। अब f के बाद क्या आएगा वो देखते हैं। Now 16 in decimal is represented as 1 4 times 0 in binary. ऑक्टल में 17 लिखने के बाद 15 को हमने 17 लिखा, 16 के लिए आ गया 20 for hexadecimal it's 10, so they are bringing one more bit, one extra bit for the and after the ending of one particular number. Now we have 17, its binary representation is 10001, but in octal it's 21. For hexadecimal it's 11. इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, एंड इट कंटिन्यूअसली गोज अप एंड अप। जो भी हम नंबर लेंगे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे नंबर में। अब देखिए कन्वर्जन कौन कौन सी हो सकती है। हमारे पास 4 नंबर हैं। एक तो डेसिमल है, दूसरा ऑक्टल है, तीसरा बाइनरी है और चौथा हेक्साडेसिमल है। डेसिमल नंबर को बाइनरी में लिख सकते हैं और बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से डेसिमल को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं और इन दोनों कोड्स को दोबारा डेसिमल में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये चारों नंबर आपस में चेंज कर सकते हैं। हम कोई सा भी कोड निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं किसी भी नंबर की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 25 बेस 10। अब 25 हमारा 3 जगह पे आता है। कौन कौन सी जगह, कौन कौन सा नंबर हो सकता है? 25 कैन बी इन डेसिमल, इट कैन बी हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। हाउ वी नो दैट ये कौन सा नंबर है? तो जो इसके नीचे लिखा है ये बेस, ये शो करता है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। जो 1010 लिखा हुआ है वो इंडिकेट करता है कि इट्स अ डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर यहाँ पे 8 लिखा होता तो ये ऑक्टल नंबर होता। अगर 16 लिखा होता, 16 लिखा होता तो ये हेक्साडेसिमल नंबर होता। अब 25 डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। हमें कैसे पता चला ये नंबर बाइनरी है? ये नंबर बाइनरी कैसे है? बिकॉज इट हैज बेस 2, so this base indicates the number system, that this number belongs to binary number system. ये ध्यान रखना कि जो बेस है वो भूलना नहीं चाहिए। डेसिमल के लिए बेस 10 रहता है, बाइनरी के लिए 2 रहता है, ऑक्टल के लिए 8 एंड हेक्साडेसिमल के लिए 16। अब ये बेस बनता कैसे है? 10 का मतलब है डेसिमल में 10 नंबर,
0 to 9, 8 से लेकर 9 तक हमारे पास 9 तक कितने नंबर बनते हैं? 9, और 0 को मिला के बनते हैं 10। सो इट मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 10। अगर बाइनरी की बात करें तो उसमें दो ही नंबर है, 0 एंड 1, तो 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 2 बन गया। इसी तरीके से ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर में 0 to 7 नंबर जो है, 1 to 7 काउंट करेंगे तो 7 मिल जाएंगे, अगर 0 को इंक्लूड कर दें और जो करना है तो 8 बन जाएगा। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में 16 नंबर्स है, उसमें से 10 डेसिमल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड 6 हेक्साडेसिमल नंबर में 6 क्या है? अल्फाबेट्स A B C D E एंड F। सो इस बेस की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा नंबर किस नंबर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे 25 है, 25 डेसिमल को बाइनरी में हम ऐसे लिखते हैं, ऑक्टल में ऐसे लिखते हैं, एंड हेक्साडेसिमल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ डेसिमल टू डेसिमल, हम किसी भी नंबर को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। डेसिमल नंबर तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर हमने डेसिमल को डेसिमल में ही चेंज करना हो, जो कि हमें पता है, लेकिन उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कौन सी पोजीशन के लिए उसका वेट कितना है। सो 1 to 5, 1 to 5 125 डेसिमल में अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग वेट है। अब इस 5 को हम 0 मानते हैं, यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं इस तरफ, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 0 1 2, तो हमारे पास कितने नंबर है? 3 नंबर है, 0 1 एंड 2। अब क्या करना है, हमने जो नंबर ऊपर दिया हुआ है 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और जो 0 हमने यहां पे लिखा था, जो 0 यहां पे लिखा है वो हम 10 की पावर मान लेंगे। देन वी हैव 1, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर कितनी रहेगी? 1। इसी तरीके से 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे विद 10 का पावर क्या रहेगा? 2। सो इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। अब ये चीज ध्यान रखना कि जो ये 10 रेज टू पावर 0 होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। 10 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, इट्स नेवर विल बी 0। तो बच्चों आपको ये डाउट रहेगा, हमेशा ये दिमाग में आता है कि अगर 0 है तो किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन जब पावर की बात करते हैं तो हमेशा ये 1 काउंट होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा। So this way 1 multiplies into 5 makes 5. In the same way 10 raised to power 1 is equal to 10 into 2, 20. 10 raised to power 2, तो मल्टीप्लाई करना है हमने 10 को 10 के साथ, तो हमें मिल जाएगा 100। 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100, और हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 125। कितना रिजल्ट आ गया? 125, जो कि हमने देखा। तो हमें पता चल गया कि कौन सी पोजीशन के लिए
क्या उसका वेट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चेंज करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। बाइनरी नंबर कौन कौन से हैं? जीरोस एंड वंस। और इनका बेस क्या रहता है? 2। So there is a method by which we change the binary into decimal number. So what we have to do? We need to multiply each bit by 2n. अब यहाँ पे n का मतलब है weight of the bit. Weight of the bit. The weight is the position of the bit. Weight is the position of the bit starting from 0 to starting from 0 on the right, और लास्ट में हमने क्या करना है? ऐड द रिजल्ट्स। ऐड द रिजल्ट्स। तो पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है हमने 2 रेज़ टू पावर n से। अब n है इंटीजर, n है वेट ऑफ द बिट। वेट इज द पोजीशन ऑफ द बिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। So now what we have, this is a binary number। हमें कैसे पता चला कि ये बाइनरी नंबर है? इस 2 की वजह से हमें पता चला कि ये एक बाइनरी नंबर है, बिकॉज ऑफ दिस 2। ओके। अब आगे क्या है कि हम इस नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो हम नंबरिंग करते हैं यहां से। सो स्टार्टिंग विद 0, then we have 1 here, then we have 2, then we have 3, 4 and 5। तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमने इसकी नंबरिंग कर ली है बिट के हिसाब से। अब हमने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू दैट मेथड we need to multiply this number with this 2, this is the power, so it makes 1 into 2 and this 0 is here, 0 from bit position। so अब अभी हमने सीखा कि किसी भी चीज की अगर पावर 0 है तो उसका मतलब है 1। 1, ये 1 कहाँ पे चला गया? ये यहाँ पे है। और ये वाला 1, ये नंबर हमारे पास यहाँ पे है, और ये वाला 1 हमारा यहाँ है, और ये 2 बाइनरी है इसलिए ये अवेलेबल रहेगा। तो इसने हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जिसकी पावर 1 है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 2। नेक्स्ट इज 0, 0 इंटू 2 और पावर 2। किसी भी चीज को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 0।
पावर की बात नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही। नेक्स्ट वी हैव 1 into 2 raised to power 3, answer will be 8, because 2 into 2 into 2, सो यहाँ पे हो गया हमारे पास 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 8, दैट्स वाई 8। उसके बाद हमारे पास 0 है, 0 को 2 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 है, मल्टीप्लाई किसी चीज से करेंगे तो 0 आंसर आएगा। नाउ वी हैव लास्ट बिट, इट इज 1, 1 को 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और इन सबको अब जोड़ देते हैं। एडिशन के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 43, और अब हमने लिखना है साथ में बेस। तो हम कौन सा नंबर बना रहे थे, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल का नंबर सिस्टम का बेस कितना है, 10। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जिसमें क्या आपको सिर्फ ये नंबरिंग याद रखनी है कि पीछे से शुरू करनी है, यहां से आगे से शुरू नहीं करनी, पीछे से शुरू करनी है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक और चीज का ध्यान रखना कि 0 को मत भूल जाना। नंबरिंग करते समय कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 1 से शुरू कर लेते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको हमेशा 0 से ही शुरू करना है। तो उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग करने के बाद इन सब नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो हमने नंबरिंग इसके नीचे लिखी है उनको उनकी पावर बना के हमने मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट में आंसर आएगा आफ्टर एडिशन, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन उसको लिखने के लिए हमें बेस की जरूरत पड़ेगी। तो बेस हमारे पास जो है वो डेसिमल के लिए 10 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड इज ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करें। अभी हमने किया बाइनरी टू डेसिमल, नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल का बेस क्या रहता है, 8, डेसिमल का क्या रहता है, 10। फॉर conversion of octal number to the decimal number, we need to multiply each bit by 8n। अब देखा जाए अगर हमने बाइनरी में 2n लिखा था तो यहाँ पे 8n है। 2 का मतलब बाइनरी था, 8 का मतलब ऑक्टल। अगेन द n इज द वेट ऑफ द बिट, ये सेम है। जो इसका n का है वो वेट शो कर रहा है, और वेट क्या है, वेट इज द पोजीशन ऑफ द बिट, जो बिट की पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये भी 0 से ही शुरू करनी है काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड। तो एक मेथड इसका देख लेते हैं। अब हमारे पास ऑक्टल नंबर है 724, तो कहां से शुरू करना है हमने, पीछे से। ये हमारा हो गया 0, 1 एंड 2, 0, 1, 2 हमने नंबरिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, उसकी पावर कितनी है, 0, जो हमने यहाँ पे लिखा है। 4 ये वाला, यहाँ पे ये 8 यहाँ पे, और ये 0
यहाँ पे 0 हमारा 8 रेज टू पावर है, 0 1 2 पावर्स बन जाएंगी 8 की। सो आंसर कितना आया 4, क्योंकि 8 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वलेंट है 1 के। सो 1 into 4 is 4। नेक्स्ट वी हैव 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया जिसकी पावर है 1, सो आंसर विल बी 16। लास्ट नंबर है हमारे पास 7, 7 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर है 2, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 into 8 कितना होता है हमारे पास 64। 64 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 into 4 is 28, 7 into 6 42 plus 2, so 44। सो ये हमारे पास 7 को 8 का स्केल से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। अब इन सभी नंबर्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, और डेसिमल नंबर बनाने के लिए हमें उसका बेस लगाना पड़ेगा। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने नंबर सिस्टम में 4 नंबर्स देखे हैं, कौन कौन से, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, और 2 कन्वर्जन्स की हैं, कौन कौन सी, बाइनरी टू डेसिमल एंड ऑक्टल टू डेसिमल। अब हमारी कौन कौन सी कन्वर्जन्स बाकी हैं, एक तो हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन वी डू द others such as octal to binary, hexadecimal to binary, और डेसिमल नंबर्स को अदर्स की फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हम सब, ये सारी चीज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आगे क्या करना है हमने, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है वो देख लेते हैं एक बार। अगला हमारा टॉपिक रहेगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब यहां से हम शुरू करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।